Welcome to channel Bio Asmita by your ma'am Asmita. And today we are going to continue about the human respiratory system. In the previous video we have discussed about upper respiratory system, right? Try to recall. The entire human respiratory system is divided into two parts, that is on the basis of location and function. The one is called as upper respiratory system, right? Now, in the upper respiratory system, we have done with the nose, nasal cavity and pharynx. In detail, we have studied all these three parts, okay? See, try to recall. Our nose start from external nostril and it ends into internal nostril, right? और उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, vestibule, then respiratory part and sensory part. After that, there is a pharynx. Now, what is meant by pharynx? Try to recall the definition. It is important for your 1 mark question as well as MCQ. Pharynx is the meeting point of your nasal cavity as well as oral cavity, right? Now, this pharynx is divided into how many parts? 3 parts. The first portion is called as what? Nasopharynx, means the area of pharynx which is in contact of nasal cavity is called as nasopharynx. Then बीच वाला जो oral cavity के contact में है, see here is the oral cavity. तो जो portion oral cavity के contact में है उसको क्या नाम दिया था हमने? Oropharynx, right? Now, below this pharynx there is a larynx, right? So I draw this larynx here. So see this white portion, this is what? Larynx. Now see, pharynx opens into larynx. The area of pharynx which is in contact of larynx is called as what? Laryngopharynx. Now ये सब मैंने क्यों रिवाइज किया? Because up to this जो भी पार्ट्स आ गए या है प्रेजेंट उसको क्या बोलते हैं? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी pharynx के नीचे जो भी कुछ होगा उसको बोलेंगे हम lower respiratory system. Okay. So first of all, what are the parts of lower respiratory system? The very first part which come under lower respiratory system is larynx. Okay. Below larynx there are the trachea. Below trachea there are bronchi, and below bronchi there are the bronchioles, then alveoli sac, okay, and सबसे important हमारे lungs. ये वाले जो organs है, this organ makes our lower respiratory system. ठीक है? So now we'll start with the larynx. First of all, what is meant by larynx? Larynx is also called as sound box. It is called as what? Sound box. अब ये होता किधर है? It's there in the neck area. ये जो हमारा neck वाला portion है ना, यहाँ पे boys में देखो particularly boys जब swallow करते हैं ना कुछ भी, मतलब liquid food है, solid food material, whenever boys try to swallow it, यहाँ पे एक movement होता है. मतलब अगर हम neck देखते हैं ना, suppose ये boy है और इसकी neck देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे थोड़ा सा projection वाला area होता है, right? That projection is actually sound box. In only case of boys, this larynx is also called as Adam's apple. ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में शॉर्ट में बताया था. It is called as what? Adam's apple. एडम नाम का लड़का था, उसके नेक में सबसे पहले स्टडी किया, ऑब्जर्व हुआ, दैट इज इसको नाम दिया एडम्स एप्पल. नाउ ये बॉयज में दिखता है, गर्ल्स में नहीं दिखता है. रीजन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. नो दिस टेस्टोस्टेरोन hormone present in the boy's body at the time of maturation. The male reproductive system is having testosterone hormone, and because of that testosterone hormone, the changing voice pattern of the voice. अभी वो voice pattern क्यों change होता है? Because that testosterone shows action on this larynx. That is why वो larynx बड़ा हो जाता है, लेकिन girls में testosterone नहीं है. That's why this bone is not visible in case of girls. Okay. Now ये जो larynx है, ये actual में करता क्या है? इसको हम और एक नाम क्या दिया हमने? Sound box. See यहाँ पे ये जो लैरिंग्स है, एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखें ना, तो लैरिंग्स के ऊपर हमारी थायराइड ग्लैंड होती है. ओके, अगर आपने डायग्राम्स देखे ना तो आपको कुछ ऐसे फॉर्म में डायग्राम्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पे ऐसे नीचे फिर लैरिंग्स कंटिन्यू हुआ होगा. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन दी लैरिंग्स. मतलब ऐसे लैरिंग, इसके ऊपर थायराइड ग्लैंड है. ठीक है, और वहां पे जहाँ पे ये थायराइड एंड लैरिंग्स प्लेस्ड है ना, वहां पे तो स्ट्रिंग लाइक पोर्शंस दिया है, उसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड. What is it? वोकल कॉर्ड. जैसे गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं ना, जब हम वो छेड़ते तो उससे आवाज निकलती है, राइट? वैसे ही हमारे नेक में यहाँ पे क्या है? वोकल कॉर्ड है. तो जब एयर वाइब्रेशंस आते हैं ना, एयर आती है तो वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है और साउंड प्रोडक्शन होता है. अभी देखो लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू सम बोन्स
हॉलो बोन्स यहाँ पे और यहाँ पे, उसको हमने नाम दिया था साइनस, राइट। तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड में क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। साइनस मतलब क्या था, एम्प्टी बोन्स ऑफ स्कल थे, राइट। तो वहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट होता है, दैट्स व्हाई अ पर्टिकुलर साउंड गेट प्रोड्यूस्ड, राइट। एवरीवन साउंड इज डिफरेंट। रीजन यहाँ पे कौन से फॉर्म में वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ पे कैसे रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है। और एक बात है, फॉर द वॉइस प्रोडक्शन योर टिथ, your lips and your tongue is also important because बहुत सारे ऐसे words होते हैं जिनको बोलने के लिए you have to use or you have to roll your tongue, okay, then you have to press your tongue on the inner side of teeth, कहीं पे lips का modulation होता है। So voice production is due to the modulation or synchronized activities of your vocal cord, your lips, your tongue and your teeth, okay। See, मैंने अभी बोला teeth, जब हम teeth बोल रहे हैं तो हमारी tongue क्या होती है, ऐसे रोल होती है, पैलेट के ऊपर प्रेस होती है, राइट। अगर हमने बोला सपोज, तो जब हम सपोज बोल रहे हैं तो लिप्स का भी मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो एवरी अल्फाबेट या पर्टिकुलर वर्ड्स बोलने में तीनों का, चारों का, सबका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, लैरिंग्स में स्टार्ट होता है। क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारा वोकल कॉर्ड, दैट्स व्हाई दिस लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, साउंड बॉक्स, ओके। नाउ दिस लैरिंग कंटिन्यू इनटू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रकिया, ओके। सो नाउ विल स्टार्ट विद द ट्रकिया। See, what is mean by trachea first of all? ये हमारा larynx, यहाँ पे larynx खत्म हुआ suppose, ठीक है। अभी below this larynx there is a presence of C-shaped rings, और ये rings मिला के एक tube like structure बनता है। ये जो tube like structure है, this is what trachea. Now pay attention, it is very important part. This trachea is made up of C-shaped ring, okay, but these rings are incomplete. Now why those rings are incomplete? Look at my hand. Consider these are your tracheal rings. Suppose ये है first ring, second ring, third और fourth. कैसे, कौन से शेप में है, C शेप में, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, उसके ऊपर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। अभी देखो आपको दिख रहा है कि रिंग्स एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड है, बट अगर इनर साइड से हम देखेंगे तो सी हियर इज द ओपनिंग, राइट। बिकॉज सी अल्फाबेट कैसे होता है, एक ही साइड से वो कर्व्ड है, दूसरे साइड से क्या है, ये ओपन है। सो व्हाट वी कैन से, ट्रकिया इज मेड अप ऑफ सी शेप रिंग व्हिच आर इनकम्प्लीट। व्हाई दोस आर इनकम्प्लीट, बिकॉज दोस आर प्लेस्ड लाइक दिस। सो आगे से तो दिखता है कि ट्यूब है, ओके, एक के ऊपर एक ऐसे प्लेस्ड होंगे, बट अंदर की साइड से देखते तो क्या होता है, दीज आर इनकम्प्लीट रिंग्स। अभी क्यों होते हैं, कितने होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 rings are there, which makes 12 centimeter long trachea. Okay, now what is the role of this trachea, or what is the structure of this trachea? The C-shaped rings are cartilaginous in nature. Wait a minute, I'll write it down here. This trachea is made up of C-shaped cartilaginous rings. Now again, very important for your MCQs as well as your board examination. Why trachea are made up of cartilage? Reason, हमारे जो bronchioles है, lungs है, alveoli है, those are elastic in nature, and that's why when we inhale they expand, when we exhale they compress, okay. But अगर पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे इलास्टिक है तो it will be difficult in the breathing, there will be the collapsing of the respiratory system. So to avoid collapsing, किसका collapsing, respiratory system का collapsing, to avoid the collapsing of respiratory system, this trachea are made up of cartilage. It is very important, okay. Now कितने रिंग्स है, मैंने बोला 12 to 16 रिंग्स है। कौन से शेप में है, सी शेप में है। कितना पोर्शन कवर करता है, 12 सेंटीमीटर करता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे और एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, ओके। सी, जो हमारी नेक है, यहाँ पे क्या है, साउंड बॉक्स है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो हमारा लैरिंग्स है ना, ये लैरिंग्स दो पार्ट में ओपन होता है, दो ट्यूब्स में ओपन होता है। कौन से दो ट्यूब्स होते हैं, सपोज हमने क्या किया, हमने फिर से डायग्राम ड्रॉ किया। सपोज यहाँ पे नोज है, ये सारे ऑर्गन्स है, ये नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, ये है हमारा फैरिंग्स, फैरिंग्स के नीचे ये है लैरिंग्स। ये कौन सा पोर्शन है, दिस इज लैरिंग, मतलब हमारा साउंड बॉक्स। अभी ये जो लैरिंग्स है, व्हाट आई एम सेइंग, दिस लैरिंग इज डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स एक्चुअली। ये देखो, ये आगे वाली एक ऐसी एक ट्यूब होती है, सपोज यहाँ पे एक ट्यूब है और यहाँ पे दूसरी एक ट्यूब होती है। Now what type of tubes these are? The one tube carry food and one tube carry air. Okay, so ये जो है orange वाली, ये जो है this tube carry food. So you can say it's a food pipe, right?
और मोर स्पेसिफिक नेम ईसोफेगस। यहाँ पे क्या है हमारा ईसोफेगस है और ये ईसोफेगस जाके कहाँ पे ओपन होता है, स्टमक में जाके ओपन होता है, ठीक है। और ये जो दूसरी पाइप है दिस इज एक्चुअली ट्रकिया। अभी देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस निकाला है, मतलब दो अलग अलग ऐसे पाइप्स निकाले, लेकिन ये इतने अलग नहीं होते, ठीक है, ऐसे बाजू बाजू नहीं होते। सपोज यहाँ से हमारा ऐसे पोर्शन है तो इसे सी शेप रिंग्स है। अभी देखो अगर ये ऐसे सी शेप रिंग्स है, मतलब मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, दोज आर ओपन फ्रॉम इनर पोर्शन, मतलब आगे से तो कर्व कार्टिलेजिनस रिंग्स दिखते हैं बट इनसाइड वो क्या है, इनकम्प्लीट है, वो ओपन है, ठीक है। और ये जो ईसोफेगस है ना, इसके बैक साइड पे क्या होता है पता है आपको, बिसाइड दिस और बिहाइंड दिस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय वर्टिब्रल कॉलम, हमारा बैकबोन, मतलब सबसे पीछे है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, उसके ऊपर है ईसोफेगस और उसके आगे है हमारी ट्रकिया। अभी देखो बहुत बार हमारे घर वाले हमें बोलते हैं कि जब भी आप खाना खा रहे हो तो जोर से हंसो मत, जोर से बात मत करो, या तो फिर कोई पानी पी रहा है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जो पानी बगल कैविटी में है, ओरल कैविटी है, वो पूरा बाहर आता है, राइट। कभी कभी वो माउथ थ्रू आता है, कभी कभी तो नोज थ्रू भी आता है। क्यों होता है ऐसे? Reason is this opening or this all pipes. Pay attention. This larynx open into what? Trachea. ठीक है, ये ओपनिंग देखो, ये larynx है, ये ट्रकिया में भी ओपन हो रहा है और ये ईसोफेगस में भी ओपन हो रहा है। ओके, जब हमें खांसी आती है, मतलब हम कुछ खा रहे हैं और वहां पे कफिंग हो रहा है, मतलब क्या होता है पता है, से आपने कुछ खाया, आपका बोलस यहाँ पे है, बकल कैविटी में आपका खाना है, ठीक है, आपने प्रॉपर्ली उसको चर्न वगैरह किया, अभी उसको स्वॉलोइंग किया, हमारी टंग क्या करती है, उस फूड मटेरियल को प्रेस करके फेरिंग्स में डालती है। बिकॉज फेरिंग्स मतलब क्या बोला था मैंने, मीटिंग पॉइंट। तो जो भी हमने खाया यहाँ पे फूड पार्टिकल जो थे वो आएंगे किधर, फेरिंग्स में आएंगे। फेरिंग्स के बाद वो आते हैं लैरिंग्स में। लुक एट दिस डायग्राम, या फेरिंग्स में या लैरिंग्स में। नाउ सी, we can judge or we can say this food material has to enter into which pipe, ईसोफेगस। ये हमें समझ में आएगा, ये फूड पार्टिकल को नहीं समझ में आएगा। इसके पास दो रोड्स है, एक तो इधर जाएगा, एक तो इधर जाएगा। अगर ये इधर गया मतलब कहाँ पे जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा एंड अल्टीमेटली स्टमक में जाके इसका डाइजेशन कंप्लीट होगा। बट अगर ये विंड पाइप में गया, ये विंड पाइप मतलब कौन है, ट्रकिया। ओके, ये ट्रकिया ऐसे डिवाइड होकर आगे जाके ब्रोंकाई होता है, और यहाँ पे ब्रोंकाई, और ये आगे जाके कहाँ पे ओपन होगा, लंग्स में ओपन होगा। मतलब ये जो हमारे विंड पाइप है वहां पे क्या है, एयर प्रेशर है। सो अगर कोई फूड पार्टिकल वहां पे जाता है तो ड्यू टू एयर प्रेशर वो फोर्सफुली बाहर आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ ओपनिंग। अभी देखो, दिस लैरिंग्स ओपन इनटू ट्रकिया, ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज, the opening of larynx into trachea is called as what, glottis। अभी देखो मैंने क्या सिचुएशन बताया आपको कि फूड पार्टिकल यहाँ पे, तो प्रैक्टिकली फूड पार्टिकल शुड एंटर इनटू ईसोफेगस, बट अगर वो ट्रकिया में गया तो प्रॉब्लम है, राइट। तो अभी क्या होता है, सिचुएशन तो ऐसी है बट बॉडी इज हैविंग सॉल्यूशन। नाउ व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन टू गेट हियर, कंसीडर ट्रकिया दी, ठीक है, ये फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, फोर्थ रिंग, ऐसे एक के ऊपर एक प्लेस्ड है। नाउ सी दिस पाइप इज हैविंग ओपनिंग, राइट। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम क्या है, ग्लॉटिस। दिस ओपनिंग इज ग्लॉटिस। कौन कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, लैरिंक्स ओपन इनटू ट्रकिया एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, ठीक है। अभी फूड पार्टिकल इधर गया, ये हमारी ट्रकिया यहाँ से ओपन है, ये जो ओपनिंग ग्लॉटिस, यहाँ पे फूड पार्टिकल अगर गया तो प्रॉब्लम है, राइट। तो ये जो ग्लॉटिस है इसके ऊपर मस्क्यूलर कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। नाउ लुक एट दिस एरिया, यहाँ पे से फ्लैप है, ये फ्लैप क्या करता है, देखो इमेजिन करो भी ऊपर से फूड आया, जैसे ही फूड आएगा ये जो फ्लैप है ना, ये फ्लैप ऐसे नीचे आएगा। अगर ये फ्लैप नीचे आता है तो क्या होगा, ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग क्लोज हो जाएगी। सो फूड आया, फ्लैप डाउन, ओपनिंग क्लोज, सी ओपनिंग क्लोज हुआ। अगर ये फ्लैप ओपन है तो ये ओपनिंग ऐसी रहेगी और फूड पार्टिकल यहाँ पे आएंगे। सो दिस इज ग्लॉटिस और इसके ऊपर क्या है, फ्लैप है। कौन से नेचर का फ्लैप है, सो दिस इज मस्क्यूलर एंड cartilaginous. It is made up of muscle and cartilage. Now, what is the name of that flap? The opening is glottis. इसके ऊपर वो flap है. That is why इसको बोलते हैं epiglottis. What is it? Epi. Epi मतलब upper और above. Okay. So again I try to tell you. ये है हमारी ट्रकिया. यहाँ पे opening है, right? यहाँ पे food particle नहीं जाना चाहिए और ये क्या है, glottis. तो इसके ऊपर epiglottis. Food आया, epiglottis down. क्लोज ट्यूब मतलब फूड अभी कहाँ पे जाएगा, फूड इज हैविंग ओनली वन रोड नाउ एंड दैट इज ईसोफेगस। सो जो भी आपने खाया है, जो भी आपने सॉलो किया है, वो कहाँ पे जाएगा, वो ईसोफेगस में जाएगा और ईसोफेगस से आके स्टमक में जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ में आया। अभी देखो और एक बात है, सपोज आपको लेट हुआ है और खाना भी खाना है,
लाइक आप कुछ डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हो, बेकरी प्रोडक्ट खा रहे हो, पर्टिकुलर ब्रेड खा रहे हो, बहुत लेट हो गया बट खाना ही है, तो आपने क्या किया, फटाफट खाना स्टार्ट किया। और कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम सॉलो करते हैं तो यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे अटकता है, और यहाँ पे एक बार अटका ना तो यू आर लाइक गिव मी वाटर, ठीक है। एंड जब हम पानी पीते हैं तो द मूवमेंट इज लाइक ऐसे करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पे पेन भी होता है, यू हैव टू गिव फोर्स, तब भी जाके जो भी यहाँ पे अटका है ना, यहाँ पे जो भी पेन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाता है। अभी ऐसे क्यों हुआ, क्यों यहाँ पे चॉकअप फील हुआ, क्यों यहाँ पे अटका, रीजन फिर से ट्रकिया, सी शेप ट्यूब्स, और हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस इज मस्क्यूलर पाइप, कहां से चालू हो रहा है, यहाँ से लैरिंग से चालू हो रहा है टिल आवर स्टमक, पूरा मस्क्यूलर है, जिसका डायमीटर 1 to 1.5 सेंटीमीटर होता है, मतलब इतना सा डायमीटर है, और हमने बहुत बड़ा वाला बोलस डाला है, ठीक है। तो बोलस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके करके नीचे जाता है स्टमक में, राइट। तो अभी इमेजिन करो आपने ये हमारा ईसोफेगस और आपने ये फूड खाया, तो जब ये ईसोफेगस थ्रू से फूड जाएगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एज दिस रिंग्स आर ओपन फ्रॉम इनसाइड, तो ईसोफेगस से जब वो फूड जाएगा तो देयर विल बी friction, there will be force applied on your trachea and esophagus due to your bolus, and that's why we feel like यहाँ पे कुछ तो अटका है, यहाँ पे चौका फील है, तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं और पानी से उसको नीचे पुश करते हैं। Understood? This is about your trachea. Wait, one more point is that the inner lining of trachea. ये तो ठीक है कि चलो हाफ शेप और सी शेप हाफ रिंग्स है, मतलब बट ये जो इनर पोर्शन है ना, यहाँ पे होते हैं ciliated epithelial tissue. Again important. Ciliated epithelial tissues are there. Now, you know ciliated, suppose ये हमारी सेल है तो ऐसे कॉलम शेप होता है और यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सिलिया बोलते हैं, और ये सिलिया क्या करते हैं, देखो सपोज ये हमारी पाइप है और यहाँ पे सिलिया है, तो सिलिया मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं। इन दी ट्रकिया देयर आर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, जो ग्लैंड नोज में है टू ट्रैप द पार्टिकुलेट मैटर, टू ट्रैप द पैथोजन। सेम टाइप ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ दिस ट्रकिया। तो यहाँ पे भी म्यूकस तैयार होता है, अगर वो म्यूकस कहाँ पे डिपॉजिट हुआ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो पैसेज है, मतलब ये जो ट्यूब है जहाँ से हमारा मतलब एयर का इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हो रहा है, उसका डायमीटर कम होगा एंड देयर विल बी डिफिकल्ट इन द ब्रीथिंग, दैट्स व्हाई ये सिलिया होते हैं। ये सिलिया क्या करते हैं, देखो कंसीडर माय फिंगर्स एज अ सिलिया, और ये पाइप है हमारे ट्रकिया है, ये सिलिया है। जैसे ही म्यूकस सीक्रेट हुआ ना, दिस ट्रकिया मूव्स इन अपर डायरेक्शन, इसे अपर डायरेक्शन में से मूव होते हैं, तो जो भी म्यूकस सीक्रेट है ना वो अपर डायरेक्शन में पुश किया जाता है, ठीक है। तो ये म्यूकस फिर आएगा हमारे लैरिंग्स में, फेरिंग्स में। पॉसिबल है कि जब आप कफिंग करोगे तो इट विल गेट स्पिट आउट इनसाइड योर बॉडी, और जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो ये ईसोफेगस में भी जाता है। Our immune system or our cilia try to push that mucus in the upward direction, और ये फोर्सफुली कहाँ पे जाएगा, स्टमक में जाएगा, ईसोफेगस थ्रू स्टमक में जाएगा। Now why? स्टमक में क्यों गया? रीजन, स्टमक इज हैविंग HCl, तो जो भी कुछ बैक्टीरिया वायरस आया अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने उसको पकड़ के रखा है, वो जाएगा HCl में, HCl उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अंडरस्टूड? दिस इज अबाउट ट्रकिया। नाउ ये जो ट्रकिया है, दिस ट्रकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 more tubes. We discuss about those tubes now. Consider करो ये हमारी ट्रकिया, अभी ये जो ट्रकिया है it divides into 2 branches, और ये जो branches है ये branches भी C shape ring से बने होते हैं। These 2 branches are called as bronchi. Okay, we can say right bronchus and left bronchus. Now this bronchi further divides into primary divides into secondary divides into tertiary divides into terminal branches, और ये जो भी branches अभी बन गए ना ऐसे primary to secondary से, I write it down here, bronchi got divided into which? Primary bronchi. Okay, after that primary there is a secondary, from secondary what is there? Tertiary. Okay, from tertiary I continue here. Tertiary continues into terminal, and this terminal ends into alveoli sac. इसे डिवीजन होता है। ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू। नीट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शन में सीक्वेंस दिया होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस, सो डोंट फॉरगेट। सबसे पहला था हमारा ट्रकिया डिवाइड हुआ 2 ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इनटू टर्मिनल, एंड टर्मिनल इनटू एल्वियोलर सैक। ठीक है, मतलब अगर हमने ऐसे कंसीडर किया कि ये पूरा टर्मिनल ब्रांचेस है, तो यहाँ पे आपको सर्कुलर पोर्शन दिखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर सैक। अंडरस्टूड? तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी कंप्लीटेड लैरिंग्स,
ट्रकिया, ब्रोंका एंड ब्रोंकियोल। ये जो ब्रांचेस है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सारा इलास्टिक है, मस्क्यूलर है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। Okay, so we completed 3 part. Trachea, sorry, 4 part. Larynx, trachea, bronchi and bronchi. Okay, this is all for now. In the next lecture, we're going to continue about alveoli and lungs. Okay, so thanks and bye-bye.